Dear class 10 students, today's topic is agriculture. This is the fourth lesson of geography. And as you know, agriculture is our chief occupation. India is a country of agriculture because most of the people are engaged in this primary occupation, agriculture. So agriculture comes under primary occupation. And India is an agricultural country, and we are going to study in detail about agriculture. What is the detail? That means what are the agricultural seasons, what are the different types of crops grown in India, what are the geographical conditions required for different types of crops. So these are the different topics which are going to cover in this lesson. And agricultural products are also of different types, like some are cereal crops, some are vegetables and fruits, some are beverages. Beverages means drink, like tea, coffee, etc. Then some are fiber crops like cotton, silk. So there are groupings or different categories of agricultural products. So let us start this lesson. India is an agriculturally important country. 2/3 of its population is engaged in agricultural activity. Agriculture is a primary activity which produces most of the food that we consume. You know, India is a country of very big size of population, and we require a lot of food products which are available from our agriculture. Besides food grains, it also produces raw material for various industries. है ना. अब इस पैराग्राफ से देखें कौन सा क्वेश्चन बन सकता है. तो एक क्वेश्चन लिखो यहाँ से. Why are the India is agriculture important country? हाँ, इसको सेंटेंस को ठीक से फ्रेम करेंगे, है ना. फर्स्ट पैराग्राफ से आप एक क्वेश्चन, एक इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन ले लें. लिखो, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज इकोनॉमी. व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडियाज इकोनॉमी. You tell me the answer. What should be the first point? Ma'am, 2/3 of its population is engaged in agriculture activities. हाँ ठीक है, तो ये एम्प्लॉयमेंट का पॉइंट हो गया. उससे भी पहले क्या लिखेंगे कि इंडिया एक बहुत बड़े पॉपुलेशन का कंट्री है और जिसके फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए एग्रीकल्चर ही एक सबसे मेजर सोर्स है ना. तो ये लिखें, लिखना शुरू करो. Following are Ma'am, the, repeat the question. Following are the importance of agriculture. Following are the importance of agriculture. First point, in a country like India, where the size of population is very huge. Ma'am, एक बार फिर से बोल दीजिए. In a country like India, where the size of population is very huge, comma, agriculture provides food grains, vegetables, beverages, etc. to fulfill the need of the country, to fulfill the food requirement of the country. Food grains, fruits, vegetables, beverages, fibers, beverages, fibers, etc. हो गया मैम. to fulfill the need. ठीक है. अब ये सेकंड पॉइंट में तुम वो लिखो जो एम्प्लॉयमेंट वाली बात कह रहे थे, वो लिखो. 2/3 of our population is engaged in agricultural activities. So it is a great source of employment. 2/3 activities. Okay, ma'am. ठीक है ना. Yes, ma'am. सेकंड पॉइंट रिपीट करो. Ma'am, 2/3 of its population is engaged in agricultural activities. So it is the great source of employment.
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, थर्ड पॉइंट, एग्रीकल्चर प्रोवाइड्स raw materials. Agriculture provides raw materials for various industries. Agriculture provides raw material for various industries like cotton, jute, silk, textile, comma, rubber, sugar cane, sugar industry, etc. Cotton textile industry, jute textile, silk textile, rubber, sugar, हो गया मैम। rubber, sugar, food And- processing, etc. Food processing industries, etc. ठीक है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं, 4-5 एग्जाम्पल लिख लो। अब यहाँ एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर का शेयर कितना रहा है यहाँ के नेशनल इनकम में, ये भी लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसमें थोड़ा नया डेटा भी देख लेंगे। अभी ये लिखो, 18% ऑफ इंडियाज नेशनल इनकम, 18% of India's national income is generated in agricultural sector. मैम क्या? 18% 18% of India's national income is generated in the agricultural sector. generated in the agriculture sector. Next point, point number 5. Ma'am, 1 minute. Yes, ma'am. Point number 5. About 10% of India's total export, about 10% of India's total export come from agriculture. Yes, ma'am, हो गया. Like, for example, यहाँ पे कुछ example add करो, like tea, coffee, spices, rice, wheat, sugar, Bananas. etc. Rice, wheat, sugar, और कुछ fruit, vegetables भी लिख सकते हैं, fruits, vegetables, etc. मिडिल ईस्ट को ना बहुत ग्रीन वेजिटेबल इंडिया से जाता है, और फ्रूट्स तो जाते ही हैं। कितने पॉइंट लिखे बताओ? 5. हाँ, तो बस ठीक है। Yes, ma'am. इतना पॉइंट काफी है, और भी पॉइंट लिखना पड़े तो एग्रीकल्चर सेक्टर अपने आप में एक बड़ा मार्केट भी है ना, क्योंकि यहाँ पे बहुत फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट, बहुत चीज की यहाँ पे बहुत चीज कंज्यूम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। तो खैर इतना 5 पॉइंट काफी है। चलो लिख लिए? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अब आ जाओ। Can you name? See here. Can you name some industries based on agricultural raw material? For example, cotton produces cotton textile, silk, raw silk, which is produced by the insects grown on mulberry trees, are converted into silk textile. There are different varieties of furs of animals which provide woolen textile. So there are various types of textile which are the agricultural products, right? And then food packaging also comes under manufacturing industry. When tea is packed, processed and packed, it becomes a manufactured item. Paper industry depend on the forest, rubber industry, lac industry. There are various types of industry, dye industry. So there are various examples which depend on the agricultural products. And agriculture has a very wide definition. ठीक है ना, तुम ये मत समझना कि एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फूड ग्रेन और वेजिटेबल फ्रूट्स ग्रो करना होता है, नहीं। एग्रीकल्चर में ना क्या क्या शामिल है, यहाँ पर कोई डेफिनेशन नहीं दिया हुआ है। नहीं, एग्रीकल्चर में लिसन, एग्रीकल्चर में क्या क्या एक्टिविटी शामिल है,
तो एग्रीकल्चर में ना तुम्हारा पूरा फॉरेस्ट्री भी इंक्लूड करते हैं, एग्रीकल्चर में फिशरीज मछली पालन जो होता है वो भी करते हैं, फिर और क्या करते हैं बताओ, एनिमल रियरिंग होता है ना, तो ये भी एग्रीकल्चर Yes, का ही ma'am. पार्ट है, तो ये भी एग्रीकल्चर के साथ इंक्लूडेड है। तो एग्रीकल्चर हैज Nursery. agriculture has a very wide definition which includes cultivating of land, forestry, fishing, animal rearing. समझ गए ना, इतने सारी चीजों को मिला के हम एग्रीकल्चर कहते हैं। तो एग्रीकल्चर सिर्फ ये नहीं है कि हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स सिर्फ ग्रो करते हैं, नहीं, फॉरेस्ट्री, फिशिंग, एनिमल रियरिंग सब मिला के। और जहाँ एग्रीकल्चर में एनिमल रियरिंग और एग्रीकल्चर दोनों करते हैं उसी को मिक्स्ड फार्मिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं बताओ, व्हाट इज मिक्स्ड फार्मिंग? मैम जहाँ एग्रीकल्चर और रेयरिंग को दोनों मिक्स कर एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग, cultivating of Yes, land ma'am, and उसको mix करके rearing of animal both are included, it is known as mixed farming. समझिए। अब ये देखो, मोर ओवर सम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफी, स्पाइसेस एक्सेट्रा आर आल्सो एक्सपोर्टेड। ये तुम अपने आंसर में भी लिख चुके हो। अब आ जाओ नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फार्मिंग। टाइप्स ऑफ फार्मिंग कई तरह के हैं यहाँ पे, तो वही एक एक करके हम देखेंगे। जैसे ये प्रिमिटिव मतलब ओल्ड स्टाइल ऑफ फार्मिंग है ना। ओल्ड स्टाइल ऑफ फार्मिंग में तुम लोग क्या पढ़े हो, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको झूमिंग कहते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखो पढ़ना शुरू करते हैं। एग्रीकल्चर इज एन एज ओल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी इन आवर कंट्री. Over these years, cultivation methods have changed significantly depending upon the characteristics of physical environment, technological know-how, and socio-cultural practices. देखो 3 पॉइंट लिखा हुआ है यहाँ पे। फिजिकल एनवायरमेंट, कैसा फिजिकल एनवायरमेंट है उस तरह का हम एग्रीकल्चर करते हैं। फिजिकल एनवायरमेंट मतलब सॉइल का वैरायटी क्या है, क्लाइमेट किस तरह का है, ये दोनों मिला के क्या हो गया, फिजिकल एनवायरमेंट हो गया। तो उस फिजिकल हिसाब से हम एनवायरनमेंट। एग्रीकल्चर करते हैं। टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, कि कितना हमारे पास मॉडर्न टेक्नोलॉजी है, उस हिसाब से एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस हमारा डेवलप करते जाता है। अगर टेक्निकल नो हाउ नहीं है, बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, तो वो ओल्ड स्टाइल फार्मिंग करेंगे, जिसको प्रिमिटिव फार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना। फिर और क्या है, सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस, वहाँ के लोगों की क्या प्रैक्टिसेस हैं, उस सोसाइटी में, उस कल्चर में किस तरह का डिजायर और डिमांड है, उस हिसाब से भी एग्रीकल्चर होता है। तो फार्मिंग वेरीज फ्रॉम सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल। देखो 2 वर्ड है, सब्सिस्टेंस टू कमर्शियल। सब्सिस्टेंस मतलब जो अपने कंजम्पशन के लिए ग्रो करते हैं, है ना, जो वहाँ की जो लोकल पॉपुलेशन है उसी का नीड फुलफिल हो पाता है। तो वैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को क्या कहते हैं, सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर कहते हैं। और कमर्शियल कब कहेंगे, जब अपने यूज के बाद हमारा एक बहुत बड़ा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस का हिस्सा बच जाता है, जो हम मार्केट में सेल करते हैं, है ना, चाहे तो नेशनल मार्केट हो या इंटरनेशनल मार्केट हो, कहीं के भी मार्केट में सेल करते हैं, तो सेल करेंगे तब उसको कमर्शियल टाइप कहेंगे, ठीक है ना। वैसे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में जिसमें कि सेल का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत बड़ा एग्रीकल्चर यस मैम, अच्छे से ग्रो हो जाए फिर हम लोग भी हाँ, तो हमारे यहाँ भी कमर्शियल फार्मिंग होती है, सब्सिस्टेंस फार्मिंग भी होती है और कमर्शियल फार्मिंग दोनों ही होती है। At present in different parts of India, following farming systems are practiced. अब देखो पहला जो फार्मिंग प्रैक्टिस है वे है ओल्ड स्टाइल फार्मिंग, प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. Style is also old, and as it is old style, so production is only for the consumption of the local people. ओल्ड स्टाइल में हम तुम क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो कि यहाँ प्रिमिटिव टूल्स को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे हो, डाव, डिगिंग स्टिक्स, है ना, ये सब देखे हो ना तुम लोग, ये इंस्ट्रूमेंट सब। यस मैम। खुरपी, कुदाल, इस तरह के होते हैं ना, ये सब होते हैं, यही हो, डाव, डिगिंग स्टिक्स, ये सब। तो टूल्स हो गए प्रिमिटिव, बिल्कुल ओल्ड स्टाइल टूल्स। और काम करने वाले लोग कौन कौन है, तो बस फैमिली मेंबर या आसपास के कम्युनिटी के ही लोग, वहीं के लोग। तो टूल्स ओल्ड हो गए और वर्कर्स कौन हो गए, बस लोकल पीपल, फैमिली पीपल और द नेबरिंग पीपल, लोकल पीपल। दिस टाइप ऑफ फार्मिंग डिपेंड्स अपॉन मानसून, ठीक है। अब यहाँ ये तो चूंकि बहुत पुराना तरीका है एग्रीकल्चर का, तो कोई इरिगेशन सिस्टम नहीं है,
तो वो पूरी तरह से रेनफॉल पे डिपेंड करते हैं। इंडिया का जब मानसून रेनफॉल आता है तो उसी हिसाब से एग्रीकल्चर करते हैं, और सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि ये केमिकल फर्टिलाइजर ये सब इनके पास नहीं है, ठीक है ना। बायो मैन्योर भी अपने तरह से तैयार करें, या फिर केमिकल फर्टिलाइजर, वीडीसाइड, फर्टिलाइजर, इंसेक्टिसाइड्स, ये सब कुछ भी नहीं है इनके पास। तो बिल्कुल नेचुरल तरीके से जो खेती करते हैं, अपने हाथों से काम करते हैं, पुराने टूल्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उसी को कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। प्रिमिटिव का मतलब हो गया ओल्ड, और सबसिस्टेंस का मतलब हो गया कि बस इतना ही प्रोडक्शन होता है जिससे वहाँ के लोकल पीपल अपना रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं, बस, ठीक है ना। हाँ, तो बस इतना ही Yes, है। ma'am. Agriculture Subsistence. is the very old style farming, and in which production is very less and just only for their own consumption, right? तो जब कैरेक्टरिस्टिक लिखने के लिए आएगा तो ये सारी बातें लिखोगे। पॉइंट नंबर 1 में ओल्ड टूल्स का पॉइंट लिख दो, पॉइंट नंबर 2 में आप लेबर कौन कौन से काम करते हैं वो लिख दो, पॉइंट नंबर 3 में ये मॉनसून की बात लिख दो, है ना। और यहाँ कोई मॉडर्न इरिगेशन ये सब कुछ यूज नहीं होता है, और फर्टिलाइजर कुछ भी यूज नहीं। फार्मिंग ऑनली। तो ये सब इसके 4-5 मेन कैरेक्टरिस्टिक हो गए यहाँ से। अब इसी का, हाँ बोलो। मैम, they use their own manures and their own fertilizer. हाँ, अगर बायो मैन्योर अपना यूज करते ही हैं लोग, लेकिन वो केमिकल फर्टिलाइजर और HYV सीड ये सब बिल्कुल भी नहीं, ठीक है ना। Yes, ma'am, this is natural production. हाँ, और इरिगेशन तो है ही नहीं वहां पे, इरिगेशन फैसिलिटी तो मानसून रेन पे डिपेंड करती है। तो इसी का एक एग्जांपल है ये, प्रिमिटिव एग्रीकल्चर का ही एग्जांपल है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, जिसको हम शिफ्टिंग एग्रीकल्चर भी कहते हैं, और इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में इसी एग्रीकल्चर को झूमिंग कहते हैं, समझ गए। तो स्लैश एंड बर्न हिस्ट्री में भी शायद तुम लोग पढ़े होंगे ये, कि फॉरेस्ट का एक हिस्सा काट के या जलाकर साफ किया जाता है, ठीक है। अगर तुमको इस पे लिखने के लिए आएगा तो क्या लिखोगे, स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज ऑल्सो नोन एज झूमिंग और शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। 3 नाम हो गया, स्लैश एंड बर्न, झूमिंग और शिफ्टिंग। तो इसमें क्या लिखेंगे कि अ पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट, लिखो तो लिखना शुरू करो, फिर भूल जाओगे तो। व्हाट इज झूमिंग, लिखो, क्वेश्चन लिखो, व्हाट इज झूमिंग। Yes, ma'am, लिख लिया। हाँ, झूमिंग एग्रीकल्चर विच इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न, कॉमा, Ma'am, please go slow. Please, ma'am. एग्रीकल्चर, झूमिंग। झूमिंग का स्पेलिंग लिखे ना, क्या है बोलो, JHUMMING, झूमिंग। देखो, झूमिंग एग्रीकल्चर विच इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर which is also known as slash and burn agriculture or shifting agriculture is practiced in the tribal and remote areas, tribal or backward areas. Backward areas. हाँ, Yes, ma'am, हो गया। ठीक है, change the paragraph. In this agriculture, a part of the forest is cleared In by this cutting or agriculture, burning. In this agriculture, a part of the forest is cleared by cutting or burning. Cutting or burning. Full stop. Agriculture is practiced in primitive style. Agriculture is practiced with primitive style using old tools, monsoon rain, using old tools, comma, monsoon rain, natural fertility of the soil. Ma'am, primitive style. Primitive style in which old tools. मैम
हाँ, रीडिंग करो तो लास्ट लाइन. Ma'am, agriculture is a practice in permit style using old tools, monsoon rain, natural fertilizers of fertility of No, soil. no, not fertilizer. Natural fertility of the soil. Yes, ma'am, Natural fertility of the soil. Fertilizer तो फिर अलग चीज हो जाएगा. हाँ. मैम हाँ बोलो. मैम इन इज स्टैंडर्ड बाथरूम से रिपीट कर रही है इन इज एक बार और बोलो. अमृत गौतम बोलो एक बार. हाँ बोलो बोलो. मैम agriculture is a practice with permanent in is स्टाइल के बाद रिपीट कर रही है ना रिपीट उसके बाद. हाँ. Ma'am, मैं शुरू से रिपीट कर हाँ दूं. रिपीट कर दो. Ma'am, Juving agriculture slash and bird agriculture, which is also known as shifting agriculture, is practiced in the tunnel or backward areas. In this agriculture, paragraph change करके, in this agriculture, a part of the forest is cleared by cutting or burning. Agriculture is practiced in permit style, using old Primitive tools, style. monsoon सुनो. rain. Agriculture is practiced in primitive style. हाँ आगे बोलो. I'm using old tools, monsoon rain, natural fertility of soil. हाँ. फुल स्टॉप के बाद लिखो. This is Yes, ma'am. practiced in. This is mostly practiced in tribal areas of Assam, Meghalaya, Mizoram, Nagaland, Chhattisgarh, Andaman and Nicobar, etc. मैम असम मिजोरम के बाद मैम प्लीज रिपीट कर दीजिए. Nagaland, Nagaland, Manipur, Chhattisgarh, Andaman and Nicobar area islands. अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स. देख रहे हो ना, जहां जहां ट्राइबल पीपल हैं, आदिवासी लोग जहां जहां पर हैं, ज्यादातर वहीं ये प्रैक्टिस होता है. और इसका Yes, ma'am. पैराग्राफ चेंज करके इसका 2 लाइन में ड्रॉबैक लिखो. Drawbacks. This is uneconomic method of farming in which This is uneconomic method of farming in which production is very less, in which production is very less and also damages the forest, and it also damages the forest. Yes, ma'am. हो गया. अनीश कुमार रिपीट करो तो. Yes, ma'am. अमन कृष्ण, एनी वन ऑफ यू? Ma'am, मैं नहीं रुक जाओ तुम. हरे राम यू वेट, दूसरे को चांस दो. अरसलान, अंशिका, कोई एक रिपीट करो. What happened? हेलो हाँ अमित बोलो. Yeah. Any one of you repeat? मैम कैन आई. Yes. मैम Hmm. yes ma'am. Zooming agriculture in which is also known as slash and burn agriculture or shifting agriculture is practiced in a tribal and backward area. In this agriculture, a part of the forest is clear of cutting and burning. Agriculture is practiced with permitting in the style using
using all to the agriculture of north and fertility in a style. This is mostly in tribal area of Nagaland, Assam, Andaman and Nicobar Island, Manipur, Chhattisgarh. और ये अनइकोनॉमिक क्यों है? मैम ड्रॉबैक्स ड्रॉबैक मैम बताओ। ड्रॉबैक हाँ मैम आई अरे, कैन हाँ This is uneconomic method of farming in which production is very less and also damages the forest. हाँ and also damages the forest. ठीक है, तो ये हो गया। मैम हाँ बोलो। I want to say हाँ ma'am I need subsistence development. And everything is good in the specific amount, not very high, not very low. हाँ किस में? Ma'am, only want to say you thank you, ma'am. हाँ for what? हाँ No, ma'am. नहीं वो Don't want to be access. हाँ तो अब सुनो, अब क्या करना है कि ये झूमिंग जो है ना, वो नॉर्थ ईस्ट में इसको स्लैश एंड बर्न को झूमिंग के नाम से जानते हैं, लेकिन देखोगे तो दुनिया में और कई जगह पे भी ये प्रैक्टिस होता है ये From एग्रीकल्चर, India also. और सब जगह From अलग India अलग also. नाम है ना। तो एक नेम का तुम लोग लिस्ट बना लो, होमवर्क में यही करना। Okay, ma'am. Make a list of names of झूमिंग एग्रीकल्चर। Make a list ma'am. of, लिखो क्वेश्चन लिख लो होमवर्क के लिए। Make a list of names of slash and burn agriculture। Slash and burn agriculture. तो इंडिया के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में इसको झूमिंग लिखना, ठीक है। Yes, ma'am. फिर मतलब इसको दुनिया के 16 किसी, लिखेंगे। हाँ लिस्ट खाली बना लेना नेम का, है ना, वो इंडिया का हो या दुनिया Okay, के ma'am. किसी हिस्से में हो। मैम मिल्पा तो नहीं इसको आपके मतलब बना के आपके हाँ। व्हाट्सएप पे भेज देंगे। अपने नहीं, अपनी कॉपी में नोट्स बना के रखो इसको। आज का ये Okay, ma'am. देखो 2 आंसर क्लास में लिखा दिए और ये तीसरा आंसर तुम 3 मैम। लिस्ट बना लोगे। मैम 3 मैम। हाँ ठीक है, मैम 3 तो लिस्ट में एक एग्जांपल देख लो, अब टाइम खत्म हो रहा है। ये मिल्पा कहते हैं मेक्सिको में, और सेंट्रल अमेरिका में इसको मिल्पा कहते हैं। वेनेजुएला में जो कि साउथ अमेरिका का एक कंट्री है, कोनुकू कहते हैं, और ब्राजील में इसको रोका कहते हैं, सेंट्रल अफ्रीका में मसोल कहते हैं। तो ऐसे एक लिस्ट बना लेना। लडांग इसको कहते हैं इंडोनेशिया में, और वियतनाम में इसको रे कहते हैं, ठीक है ना। अब इंडिया में ना देखो, इसको बेवार कहते हैं मध्य प्रदेश में, पेंडा कहते हैं आंध्र प्रदेश में, पाम्बा दाबी या कोमन कहते हैं इसमें ओडिशा में, कुमारी कहते हैं वेस्टर्न घाट में। तो ऐसे ऐसे करके तुम एक लिस्ट बना लेना, बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देना, एक तरफ नेम्स ऑफ शिफ्टिंग एग्रीकल्चर और दूसरे तरफ रीजन्स लिख देना कि किस रीजन Okay, में ma'am. इसको किस नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहेगा, अब टाइम खत्म हो रहा है। और कुछ बताओ। मैम सब कुछ हो गया, एक बार पूरे बहुत अच्छे से नोट्स बनाते चलो, ये फाइनल एग्जाम में भी आएगा, इसका फिर मैप वर्क भी करेंगे। तो आज का क्लास हम यहीं खत्म करते हैं, इस लेसन की रीडिंग मैम कर। कल आप Good afternoon, ma'am. Goodbye, ma'am. बाय। मैम कल आप मैम कल सीबीएसई का गाइडलाइन जो है वो मैम बताइएगा ना हम लोग को पढ़ के। कौन सा? Yes, ma'am. जो सीबीएसई का आया गाइडलाइन है। अच्छा अच्छा वो, अच्छा ठीक है, हाँ मैम ठीक। बोर्ड का पेपर कहाँ चेक होगा? स्कूल में? तुम्हारी आवाज कट गई, नहीं आई, ठीक से बोलो। हाँ फिर से। बोलो एक बार। मैम ये बोल रही है कि जो हम लोग का एग्जामिनेशन होगा वो स्कूल में होगा। नहीं अभी कोई पक्का नहीं है, हाँ अभी कुछ बताया नहीं जा सकता है कि हाफ ईयरली एग्जाम कैसे होगा, है ना। अभी पीरियोडिक तो ऑनलाइन होगा ही होगा, और हाफ ईयरली का भी नहीं पता है। ठीक है ना, ओके बाय ऑल ऑफ यू।